بات نہیں کروں. میں اس خوشی کے ساتھ خاطر جو اصل میں بچوں کے لیے خوشی ہونی چاہیے, جس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں بتا دیا اب آپ انجینئر بنیں گے, آپ ڈاکٹر بنیں گے, آپ یہ بنیں گے, بس اب ہنس گئے. یہ جو سیٹ رولز بنے گئے کہ سوسائٹی کے سکسیس کامیاب سوسائٹی, وہ کہتے ہیں کہ کامیاب سوسائٹی بہت سطحی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میں نے ان سے سیکھا کہ بچپنے سے انہوں نے اپنی جو انکوائری کی پرسوٹ ہے اس کو نہیں کمپرومائز کیا, اس کو نہیں کمپرومائز کیا کبھی. انکوائری واز سینٹرل, چاہے وہ کیمرے کو کھول کے رکھ دینا, چاہے وہ پینسل کو کھول کے رکھ دینا, چاہے وہ سائنس کو بیٹھ کے سمجھنا, چاہے وہ ہسٹری کی تحقیق میں چلے جانا, یہ ان کے لیے لازم تھا to be an inquirer. Inquiring minds, he thought, were the most original minds. کہتے ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے تم لوگ سب ڈیریویٹو ہو, انگریزی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے سیکھا تو ثانیہ سرور کو کاپی کر لیا, عالیہ کو سیکھا, عالیہ سے کاپی, امینہ سید کو. اپنی سوچ خود رکھو, کیونکہ اللہ میاں نے, وہ کہتے تھے اللہ میاں نے کسی اسپیشیز کو یہ نہیں بنایا کہ تم ہو اشرف المخلوق, انسان کو کیوں اشرف المخلوق بنایا اور وہ مجھے امپاور کرتا ایز اے چائلڈ. میں اللہ کی امیج میں ہوں, اس کا مطلب ہے to raise my capacity کہ میں اللہ کی امیج میں ہوں. اسی لیے ہے کہ حقوق ہمیشہ کہتے ہیں کیوں ہے حقوق العباد امپورٹنٹ حقوق اللہ سے. آپ کو معلوم ہے اللہ کیا کہتا ہے, میرے حق جو ہے وہ سیکنڈری ہے, انسان کے حق پرائمری ہے. آپ پہلے وہ کریں تو وہ منزل سے آگے جائیں گے. سادی سی باتیں ہیں, بٹ فار سم ریزن young person, I mean all of you, ہمیں سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ہماری جو کسی بھی مذہب کی سالڈ امداد بہت سادی ہوتی ہے. جتنے بھی پیغمبر آئے اور وہ ہم سے کہتے ہیں 1,24,000 پیغمبر ہے, میرا تمہارا کیا مطلب ہے مسلمان ہے, ہو سکتا ہے خود کا بھی پیغمبر تھا, اللہ میاں کے لوگ تھے. تو I think وہ سب جو تھی that was something that's important. Can teachers do it? اب یہ سنجنا نگر کے ٹیچرز بیٹھے, یہ جو 35 منٹ کا 45 منٹ کا لیسن ہوتا ہے اسے پینک کر جاتے ہیں. ارے کہیں شروع تو بات کرو, اور شروع بات کرو تو 45 منٹس بھی بہت کافی ہوگی. اینڈ وی ہیو ٹیسٹڈ, سو authenticity is very important. ہر چیز کاپی کیٹ کلچر سے وہ پریشر تھا, اور ان کو یہ تھا کہ انسان کی اصل خوشی جو ہے نا وہ اس میں مشق ہے. Don't deny people their happiness, but with responsibility. میں آپ کا دل دکھا کے کچھ نہیں, بٹ مجھے کبھی ہارڈ ڈیسیژن. آپا اب جانے کا وقت بھی آ رہا ہے, تو میں آپ سے جاتے جاتے ایک سوال کرنا چاہوں گی. شکیلہ کی نظم پڑھنے سے پہلے جو کاغذ پہ لکھی ہے اور خود لکھی ہے جی, اور عالیہ بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں. تو آپا میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا, سوال تو بہت سارے تھے, کہ کوئی ایسا لمحہ زندگی میں گزرا ہو جو آپ چاہتی ہیں کہ وہ آپ کے ذہن میں رہ گیا اور آپ چاہتی ہوں کہ وہ لمحہ آپ دوبارہ گزار سکیں, رضا کے ساتھ گزارا. یہ بہت ہی مشکل سوال ہے ساتھیہ, مگر سنجنا نگر کے لیے ایک فنڈ ریزر تھا, اس میں احمد حسین ہندوستان سے آئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ میں لائیو پینٹنگ کروں گا, اور وہیں پہ آصف جاہ حویلی میں, کون آصف جاہ حویلی کیا ہے, لاہور شہر کسی نے دیکھا؟ ہائے ہائے, لاہور شہر کو دیکھو, آصف جاہ حویلی ہمارے ہندی دروازے سے جاؤ تو آصف جاہ حویلی آتی ہے, بستی گیٹ سے جاؤ تو وہاں بھی فنڈ ریزر تھا. یہ نور جہاں کے بھائی کی حویلی تھی, اور انہوں نے نور جہاں جو ہماری اورنگزیب کی, تو انہوں نے مغلوں کی جو بڑی شہزادی تھی ملکہ تھی, تو وہاں پہ ہونا تھا. تو ایم ایف حسین آئے جو بہت بڑے بڑے صغیر کے آرٹسٹ تھے, اور وہ آئے سنجنا نگر کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے. فریدہ خانہ سب کو رضا سے بہت پیار لگاؤ تھا, انہوں نے کہا کہ ساتھ میں, اور ساتھ میں زہرا نگاہ جو انہوں نے ہمارا ترانہ لکھا اس فیسٹیول کا, ہمیں کتاب چاہیے جو زندگی بدل دے, وہ نثار چاہیے. تو وہ جب
ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जब ये लोग कोई प्लानिंग इतनी ही करते हैं, जैसे इन्होंने विचारों की सवाल, अभी इकट्ठे हो गए बड़े लोग, अब क्या करें? फंड रेजिंग में इतने थे, बड़े लोगों को बुला लिया। अब रजा साहब ने कहा कि सब लोग बैठ गए, रजा साहब की एक बैठक है लाइब्रेरी, उसी के साथ, और कहा अच्छा करना की है। आपको पता है फरीदा खाना हमेशा पंजाबी दिल से पंजाबी बोलती थी, जहरा निगाह उर्दू में करती थी एमएफ से। तो एमएफ ने कहा कि जो भी हो ऐसा हो कि मैं इंस्पायर हो के फिर आर्ट करूं, और मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे दिल में वो होना चाहिए। तो जहरा निगाह ने कहा कि मैं भी कुछ अपनी शायरी करूँगी, और जहरा निगाह की बहुत बड़ी शायरी है, मैं बच गई माँ और मगर, अगर आप जरूर सुनना जहरा निगाह। तो फरीदा खानम ने कहा कि ठीक है साहब, फिर कुछ अच्छी भी गा देंगे, कुछ चंगा कोई गजल, पर मैं आपको पता है कि साड़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा मैं उस वक्त मेरा बचपन ही समझेगा थोड़ा सा कम उम्र थी, अब मैं सुन रही हूँ उन लोग की बातें और मैं टेंशन में हूँ कि यार ना ये कैसे होगा ये फंड रेजर, ये लोग तो अपनी अपनी तरह की बातें करते हैं, नहीं कुछ कर सकते, और ये बड़े लोग हैं सारे। तो उन्होंने कहा नहीं कि मैं साड़ी की जो पानी है ना वो होनी चाहिए ऐसा रंग की, मेरे मौला, वो कह रहे ऐसा रंग की होवे कि मैं गा सकता, मैं नहीं गा सकता। अब इमेजिन करो कोई ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं और कोई इतनी बड़ी सिंगर फरीदा खानम जी को अगर नहीं सुना तो बेटा जरूर सुनना। तो कह लगी कि हम पता है रंगा का बड़ा जार रंग के बगैर माफ नहीं करता, तू नहीं करता, मैं साड़ी के बगैर गाना नहीं है, मेरे साथ मैं साड़ी पानी के सामन पे अब रजा बैठकर बड़े के पीछे मुझे देखे इसको देखे, मगर मैं जो इस मौके को देख रही थी, ऐसे लोगों ने बड़े लोगों ने इकट्ठे होना, सारी बातें दिल की करनी, और फिर कहकर मुझे देख लगे बेटा अब क्या करेंगे? तो मैंने कहा मुझे लगता है मेरे पास 2 साड़ियाँ पहनी नहीं है, तो मैं लेकर आती हूँ। जब वो मैं लेकर आई तो ऐको ही देखी हुन दसो केड़ी गजल गानी। आप इमेजिन करो इतने बड़े लोग who sit and who read sections just for emotions of the most amazing kind, और फिर जो इन लोगों ने वो सेशन किया है और जो लाइव म्यूजिक पे ये फरीदा खानम को उसका रिकॉर्ड किया, क्लिप लगा देंगे आप सबके लिए। फरीदा खानम ने उसी साड़ी में गाया और जहरा निगाह ने अपने अशार पेश किए और एमएफ ने पेंटिंग की, और मैं उस जमाने में 1 करोड़ पैसे रेज किए नगर के लिए। तो ये बड़े लोग वो क्या मौके आएंगे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इतने जेनरस ये लोग थे, इतने बड़े दिल के लोग थे, व्यापारी नहीं थे, इन्होंने एक बड़े कॉज के लिए तालीम के लिए करना था। आई ऑलवेज डू थिंक यू नो ये मौके क्या मेरे लिए कभी आ सकते हैं? क्या मैं इस जेनरॉसिटी की हूँ? क्या मैं ऐसे लोगों को महफिल इकट्ठा कर सकती हूँ? रजा के कहने पर तो अरे बेला आपा आप अंडर एस्टिमेट करिए, बताइए बेला रजा ने ये पूरी महफिल सजाई है आपके लिए, कहाँ से लोग नहीं आए, आपकी तालियां बताएंगी। बहुत शुक्रिया बेला आपा, बहुत मजा आया ये सारी बातें सुन के आपके मुंह से। और शकीला आप नज़म कर दीजिए। बारिश का पहला कतरा था वो, शायद बादल जिसका परदेस चलकर आया हो, खुश्क जमीनों पर रहमत बनकर छाया हो, प्यासी सोचों को सैराब किया, बड़े सागरी की तारीक रातों का वो एक चमकता सितारा बना, जब हर सू मायूसी के साए थे उसने उम्मीद की जलाई। अपनी इकलौ से हजारों दीप जलाए, इल्म की शम्मी घर घर पहुंचाई,
जहालत के अंधेरों को ललकारा, हर दिल में रोशनी का बीज बोया। मजदूर के बच्चों को भी उसने सितारों के जहां का मुसाफिर बनाया। कहा तुम्हारा भी हक है आसमानों पर, और हाथ पकड़कर उनको उड़ना सिखाया। कौम की बेटियों को उसने बाइख्तियार होने का ख्वाब दिया। कहा तुम कमजोर नहीं, तुम चिराग हो, और हर बेटी के हाथ में किताब दी। वक्त के हाकिम से जबरदस्ती कभी उसने बैत न की। सच की राह पे डटा रहा, जुल्म के आगे सर न झुकाया। मोहब्बत आम दोस्ती का दर्ज दिया जिसने, नफरत की दीवारों को गिरा दिया जिसने, दिल जोड़े फासले मिटाए, इंसानियत का परचम लहराया। वो बारिश का पहला कतरा था जो कतरा दरिया बन गया, जो अकेला चला था कारवां बन गया, और कारवां मंजिल का निशान बन गया। थैंक यू। अल्लाह उन्हें दुनिया में भी खुश रखे। थैंक यू मैम। तो रजा साहब ने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया, इजाद किया सागर बीना, वो 54 बरस लगे उस इन्वेंशन को। उनकी कोई 8 इन्वेंशंस हैं, मगर ये पाकिस्तान की 9 इन्वेंशंस में से एक इन्वेंशन है। और आपको जब सुने तो मेरी बड़ी बहन बजाती है। हम लोग सब जुटे हुए हैं रजा के कामों में और रजा की लिविंग लेगेसीज को आगे पहुंचाने में, और अपनी भी, क्योंकि काम ओरिजिनल ही अच्छा लगता है। आप लोगों को भी ओरिजिनल काम करना चाहिए। मैं खाली गाना नहीं सुनाऊंगी, गाना तो मैं गाती रहती हूँ। हाँ, शॉर्ट टाइम में ही बोलूंगी, कोशिश करूंगी। बोलना मुझे आता नहीं, लेकिन कोशिश करूंगी। एक आलिया जिसे कोई नहीं जानता था, कौन है आलिया, क्या है आलिया। ये बात है 1998 की। मैंने एक ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जिसे संजय नगर फिलॉसफी एंड आर्ट्स, सीपा के नाम से जाना जाता है। मेरे पंख को उड़ान दी गई। ये उड़ान ऐसे नहीं मिली मुझे। ये उड़ान जिस इंसान ने मुझे दी, वो जमीन से जुड़ा हुआ शख्स, कतावर शख्स, जिसने मुझ नाचीज को उड़ान दी। कि उड़ते कैसे, उस को डिस्कवर कैसे किया गया। और डिस्कवर ऐसे किया गया, जब मैं पहुंची तो मेरी आवाज कुछ ऐसी थी, रॉ मीडियम। मैंने एक गाना सुनाया उस इंसान को जिसे रजा कासिम कहते हैं। मैंने गाना सुनाया, अगर इजाजत हो बस थोड़ा सा सुनाऊंगी। वो गाना कुछ यूं था, मेहदी हसन साहब का गाना। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। ये भी शो हुआ। किशोरिया मोनकर जी का राग गॉड सारंग, उस दिन मुझे सुनना आया। गॉड सारंग भी मेरे लिए नया,
किशोरी अमोनकर बहुत बड़ी आर्टिस्ट, वो भी मेरे लिए नई। फिर मेरे लिए एक रास्ता बना हिंदुस्तान जाने का, और वो भी रजा काजिम साहब की वजह से बना। और मैं पाकिस्तान की पहली लड़की हूँ जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने 4 साल का वीजा दिया। ये रजा काजिम साहब का ही कमाल था, उनकी बदौलत मुझे हिंदुस्तान जाने का मौका मिला। और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ। आज मैं संजय नगर स्कूल में 21 सालों से मैं उस विजन को आगे लेके मौसीकी के जरिए चल रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिद के गुलकार है और जो ध्रुपद में गाती है आलिया रशीद गुजरावाला से हैं, एंड शी इज टेकिंग दिस लेगेसी फॉरवर्ड और बहुत सारे लोगों को सिखा रही है, ऑनलाइन भी सिखा रही है। तो आलिया तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने एक सिलसिले में बंधे हुए, मगर उम्मीद है कि हम रजा के काम को आगे बढ़ाते रहेंगे और बामाने तरीके से, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई भी काम ऐसा हो कि ज़बरदस्ती का हो, खुला सौदा हो और आज़ादी का हो और बहुत मेहनत का हो। उम्मीद है कि हम तो इसी तरह से आगे जाते हैं। जाके आप रजा कासिम के बारे में और पढ़िएगा, और जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं इसकी कदर कीजिए। और आज आपको मालूम है अर्थ डे है, और अर्थ डे में पौधों के ऊपर और हर चीज के ऊपर काम सिलसिले चल रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि सादिया के लिए खुसूसी तौर पे पौधे जी, क्योंकि पौधों से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं हो सकते। और आज के दिन, और आपको मालूम है इस पर क्लाइमेट चेंज और स्मॉग और हर चीज़ के मसले से नकल में पौधों से मोहब्बत बहुत होनी चाहिए। आपको मालूम है फरहान अजीज साहब जो आपके ड्यूटी है सिविल सर्विसेज के बदलना चाह रहे चीज़ों को, उन्होंने क्या फैसला किया है कि यहाँ पे साइकिलें चलेंगी, गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, ताकि पोल्यूशन का हो किसी बात